Hello, dear friends. I welcome you all to my Institute English Cosmos. I am Dr. Mukesh Parik, and in today's video, I'm going to talk about certain tips which are very essential for almost everybody, those who already speak English and those who feel that they have to learn something in spoken English. First of all, let us talk about that what is a spoken English. In India, what I have noticed in my career, that it is considered that speaking anything in English is called spoken English. But sometimes you find that it might not impress certain people, because nobody can doubt it that we in India speak English just to impress people. Otherwise, we all have our native languages and we can do without English as well. So here I go with certain tips how to improve your spoken English. You can allow me to be a bit bilingual also in between. Some students feel that without good vocabulary, without good pronunciation, without good sentence structure, and just speaking very fast, fluently, can impress anybody. So these are myths only, dear friends. Because I have been being taught and I have been in the company of people who have been professors of English. So you can understand that in India, spoken English has different levels. So when I say that I have been with the people who speak English, those who deal in English, and English language and literature have been their career, their profession. If these people never bother themselves to speak fast, fluently, that doesn't mean that, if you want to speak English to impress people, you have to speak fast. I have come across many people whom I don't understand sometimes. Literally, I don't understand them because they speak very fast. Even their articulation is totally to themselves also it is inexpressible, and to me also it is incomprehensible. So आज बात करते हैं कि क्या होती है spoken English, and you can rely on me because I have been teaching English for last 25 years, and some of you will be surprised to know that instead of being a trainer of NET English literature for second grade, first grade, TGT, PGT, and for literature, I constantly been running 1 to 2 batches of spoken English always in my institute for last 25 years. So I have a very good experience of that. Let me give you the reasons of my authority, the confidence behind making a video on this topic, because I have done 2 MPhils. Most of you know that I have been a student of Master of Philosophy in Literature as well as English language teaching. So there I learned all these things like how to teach English. So I have a full command over teaching grammar, teaching vocabulary and all things. So with this note, I can proceed to anybody. This video can be helpful for anybody who really want to impress people with their English. And don't take me wrong if I say that we impress people with English. In India, literally we get impressed by people one who speak good English. अगर कोई जरा भी मिस्टेक करता है, जरा भी उसका प्रोनाउंसिएशन इधर से उधर होता है, भले वो प्रोनाउंसिएशन हम लोगों को नहीं आता हो, हम लोगों को मतलब इवन in my life also I have been taught in good English medium backgrounds, and because my father was in transferable jobs, so sometimes we lived in very small towns also. There we did not get the chance to study in good English medium schools, but still it was bilingual and mediocre kind of schools also, but their teachers were very good, and I had a keen interest in English, so I got very good English. तो क्या होता है स्पोकन इंग्लिश और कैसे इसको इम्प्रूव करते हैं, वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स तक ये मैसेज पहुंच सके। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ सिखाता हूं। इसमें देखिए कि 3 मैं आपको फ्रेज सिखाता हूं आज, उसके बाद मैं आपको टिप्स दूंगा कि स्पोकन इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करते हैं। आज मैं 3 आपको पहले छोटी छोटी चीज़ें सिखाता हूं कि आपको क्या कहना चाहिए जिससे आप इम्प्रेसिव फील कराएं दूसरों को। जैसे आपको ये कहना है कि आई डोंट नो, कहीं आप सपोज यू वांट टू से दैट आई डोंट नो, तो
Don't use it I don't know. Instead of this say your guess is as good as mine. दूसरा है, अगर आपको कहना है कि भाई गुड लक किसी को, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड लक यू कैन से ब्रेक अ लेग. अगर आपको कहना है डोंट से दैट आई एम सिक, ऑलवेज से दैट आई एम फीलिंग अंडर द वेदर. सो इन 3 टिप्स के साथ, और मैं रिपीट करता हूं, हमें हमेशा ऐसे कहना है कि योर गेस इज एज गुड एज माइन. अगर हमें कहना है आई डोंट नो, अगर आपको कहना है गुड लक तो इसकी जगह आप बोलेंगे ब्रेक अ लेग. और अगर आपको जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना चक दे फट्टे, तो किसी को लक फील करवाना हो तो हम ऐसे बोलते हैं दैट ब्रेक अ लेग. और बीमार होने पे हम बोलते हैं आई एम अंडर द वेदर. उसके बाद मैं टिप्स देता हूं कि हाउ टू स्पीक naturally like a native speaker, though it will be a sheer pretension if we speak like a native, क्योंकि उसको हम आजकल affected style बोलते हैं कि बन रहा है अपने आप को. फिर भी आप इंटोनेशन सीख सकते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंप्रूविंग योर इंग्लिश मीन्स आप इंटोनेशन सीख सकते हैं. इंटोनेशन क्या होता है? इंटोनेशन का मतलब होता है वेल आई वाज गोइंग देयर. थोड़ा सा इंटोनेशन, थोड़ा सा स्टाइल में, थोड़ा एक रिदमिक वे में आप इंग्लिश बोलना सीखें. अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन की टोन लाइए. जैसे आपको ये पूछना है कि तुम कहाँ थे, तो वेयर वर यू ऐसे बोलने की बजाय वेयर वर यू. तो एक इंटोनेशन आपके लैंग्वेज में आएगी. अगर आपको ऐसे कहना है कि आई वाज देयर, तो अगर आप इसमें अगर थोड़ा रिदम से बोलते हैं आई वाज देयर, यू नो, सो वेयर हैव यू बीन, तो थोड़ा सा आपको लगेगा, फील आएगा इंग्लिश का. सो दिस इज कॉल्ड इंटोनेशन. आपको किसी को थैंक यू बोलना है तो थैंक यू. आप राइजिंग और फॉलिंग टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप प्लेन थैंक यू बोलोगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप बोलते हैं ओ इट्स सो काइंड ऑफ यू रमेश, अगर किसी को बोलना है इट्स सो नाइस ऑफ यू. अच्छा, इंडिया में एक प्रॉब्लम ये मानी जाती है कि अगर हम इंटोनेशन यूज करते हैं तो हम गर्लिश लगेंगे. क्योंकि हमारे इंडिया में गर्ल्स जो है वो इंटोनेशन ज्यादा यूज करती है. सो वी फील दैट एक मैस्कुलिन टोन अगर हम बना के रखते हैं तो वो अच्छी मानी जाएगी. इट इज नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट अ मिथ. आप ऐसे बोल सकते हैं ओ माई गॉड, ओ माई गॉश, व्हाट, ऐसे करके. अब आपको मैं अजीब लग रहा हूँ आंखें निकालता हुआ, इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स. अगर आपको ऐसे बोलना है जेस्चर, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ जेस्चर्स. मैं ऐसे स्टिल रह करके भी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बना रहा हूँ. मैं समटाइम्स होल माय होल बॉडी मूव्स रिदमिकली लाइक दैट. समटाइम्स व्हेन आई स्पीक इन क्लास, व्हेन आई डिलीवर माय लेक्चर, माय आईज, माय शोल्डर्स, माय हैंड्स, माय टंग, they all speak. So इसको हम gestures बोलते हैं इंग्लिश में. जेस्टिकुलेशन बोलते हैं कि आप कुछ बोल रहे हैं तो आपके साथ आपके हाथ बोलें, फीलिंग्स आनी चाहिए. ऐसा लगता है कि आप फोर्सफुली अपनी बात को बोल पा रहे हैं. ठीक है. और तो बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स के अलावा एक वर्ड और होता है जिसको काइनेसिक्स बोला जाता है. ये सब मैं आपको बता देता हूँ दैट आई हैड बीन टीचिंग एज अ इंस्ट्रक्टर ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन MIRC जयपुर 20 years ago. तो जो फ्यूचर इंजीनियर्स जिनको रिक्रूटमेंट के लिए या कैट की कोचिंग में मैं पढ़ाता था जब, तो मैं इस तरह के GD के बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे लेक्चर्स देता था और स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट भी होता था उससे. उनको ऐसा फील होता था कि अब ऐसे लग रहा है हम इंग्लिश बोल रहे हैं. सो इंडियन इंग्लिश और थोड़ा सा फॉरेन इंग्लिश में ये हल्का सा डिफरेंस आ जाता है कि इंडियंस अगर थोड़ा बॉडी लैंग्वेज यूज करें और थोड़ा सा फोनेटिक्स की ओर जाएं. फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन को आप बहुत ध्यान से देखिए. जैसे आपको बोलना है गार्डियन, तो मैं देखता हूं कि ज्यादातर लोग गार्जियन बोल के काम चला लेते हैं, विच इज रॉन्ग. अगर आपको ऐसे बोलना है कि वो कार्टन इधर ले आ, तो कार्टन को लोग कार्टून बोल देते हैं. दे डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन देम. अगर उनको ऐसे बोलना है कि हम एक होटल में एक स्वीट में रुके, तो वो बोलते थे सूट में रुके. SUITE इज कॉल्ड स्वीट, है ना. जैसे हमें बोलना है डेवलपमेंट, तो हम क्या करते हैं डेवलपमेंट. ऐसा लगता है डेवलप को डबल बोल रहे हैं, डेवलपमेंट. तो ये प्रोनाउंसिएशन की ओर थोड़ा ध्यान देना, फोनेटिक्स चेक करना. जो भी वर्ड आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है आप उसको चेक कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर. ठीक है. जैसे क्यूकम्बर, खीरे को इंग्लिश को, खीरे ककड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूकम्बर, लेकिन आप मोस्टली कुकुम्बर करते हुए लोगों को आप सुनोगे. तो जिनको आता है फिर वो उनकी नजरों में थोड़ा सा ऐसा फील आता है कि ये सीखा हुआ नहीं है शायद, और यहाँ फिर नजरों में हम गिरा देते हैं उस इंसान को. ये होता है इंडिया में, आपने महसूस भी किया होगा. ठीक है. जैसे वर्ब और नाउन के डिफरेंसेस इंडियंस नहीं जानते कि कब प्रैक्टिस होता है और कब प्रैक्टाइज होता है.
तो अगर वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो हम बोलते हैं प्रैक्टाइज, और अगर हम नाउन की तरह बोल रहे हैं तो हम बोलते हैं इट्स प्रैक्टिस. सो ऐसे आई कैन गिव यू सो मेनी एग्जांपल्स बिकॉज आई हैव बीन अ ट्रेनर ऑफ दैट. इसके अलावा अगर जैसे आप मुझे बोलते हुए देख रहे हैं तो क्या मैं बहुत जल्दी में बोल रहा हूं? कीप calm, use your time. Naturally try to speak, you are not going to miss a train for that. स्लोली बोलिए. जरूरत नहीं है किसी को इंप्रेस करने की. लोग अपने आप इंप्रेस होंगे आपके प्रोनाउंसिएशन से, आपकी सिलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी से, आपके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से. हालांकि सम पीपल विल डिसएग्री विद मी दैट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट. मैं भी मानता हूं जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ग्रामर यूज करें, बट एटलीस्ट बी कॉन्शियस अबाउट सर्टेन एरर्स. जैसे आपको कहना है कि मैं तेरा वेट कर रहा हूं 2 घंटे से, तो देयर इज नो नीड टू यूज कंटिन्यूअस टेंस फॉर दैट. यू शुड यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस, लाइक आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू. ठीक है, फॉर 2 hours. अगर आप बोलते हैं आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, तो फिर ये थोड़ा हमें अजीब लगेगा कि ये गलत बोल रहा है. ठीक है, फिर कुछ टंग ट्विस्टर्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. दैट विल साउंड एंड मेक इंग्लिश क्वाइट नेचुरल ऑन योर माउथ. जैसे बिटी बॉटी बॉट सम बटर बट द बटर वाज सो बिटर. थोड़ा सा अखबार तेज पढ़िए इंग्लिश में, अपना एक वीडियो बनाइए, उसको देखिए मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ. और अगर आपके अंदर कोई रीजनल टोन आती है, जैसे आप बिहार से हैं या आप जम्मू कश्मीर से हैं, आप हरियाणा से हैं, यू विल फाइंड दैट सर्टेन रीजनल एक्सेंट विल ऑलवेज बी देयर. सो कम ऑन, let it be, come on, that is your identity. Don't ashamed of that. न्यूट्रल स्पीच लाने के लिए आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा. वीडियो लंबी हो रही है. मैं आई जस्ट I take your leave now. Thank you very much. जब हम किसी से लीव लेते हैं तो हम इसको ये भी कह सकते हैं let us call it today. Let us call it a day today. Let us call it a day का मतलब let us call it a night का मतलब कि आज का काम यहीं खत्म हुआ. बाय बाय फ्रेंड्स. और कमेंट्स लिखिएगा जरूर ताकि मुझे पता चले कि मैंने वीडियो कैसी बनाई और मैं इस तरह की और वीडियोस आपको दे सकूं. थैंक यू सो मच.